So today we are going to discuss the Z transform. So if I just ask you what is Z transform, so how can you define Z transform? Yes, anyone? What is Z transform? The inverse Fourier transform को Z transform. No, no, no. Inverse Fourier transform is not Z transform. Z transform is the Fourier transform of discrete time signal. So as we have discussed in signal and system, that whenever we are calculating Z transform, it is totally associated with the discrete time signal. So in our last class, we have discussed discrete time Fourier transform, which was DTFT, and now we are going to discuss Z transform. Now we have to create a relation between these two because both are almost same thing, but the domain is different. इन DTFT डोमेन इज ओमेगा, यानी आपके पास एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी डोमेन है, बट हेयर वी हैव जेड डोमेन. तो ये डिफरेंस है, अदरवाइज इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही है, बिकॉज बोथ आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. क्लियर? यस सर. ओके, तो अगर हम जी ट्रांसफॉर्म में, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जी ट्रांसफॉर्म में बेसिकली होता क्या है, कि हमारे पास व्हाट इज जेड, ये जो इवॉल्व हुआ है, इट इज़ बेसिकली इवॉल्व फ्रॉम द लेप्लास ट्रांसफॉर्म. And as you know, in Laplace transform, where which type of domain is Laplace transform, we are using S domain. So if you can see that I'm highlighting this expression, you can easily understand what is Z domain. So Z domain is equal to exponential st. So S is indicating the Laplace domain. So there is a different. This is the relation between the Z transform and the Laplace transform. We call it S domain. And what is S? Yes, what is S? frequency. S is a complex number. Yes, it is a frequency. जब हम S domain की बात करते हैं, तो S domain is what? It is a complex plane which is equal to real and imaginary part. क्लियर? तो ये जो एक्सप्रेशंस है, ये हम आई होप कि आपके जहन में ये चीज़ें होंगी, क्योंकि वी हैव डिस्कस जी ट्रांसफॉर्म इन सिग्नल एंड सिस्टम आल्सो. So just continuing from that Z transform, and we are moving forward. So these are the terms I hope you are already familiar with. So what is Z transform? Z transform is the Fourier transform of discrete time signal, and it is evolved from the Laplace transform. And if you compare a Z transform with the discrete time Fourier transform, which is the DTFT, so there is only difference of domain. So we plot the signal in terms of frequency in DTFT, just omega in omega domain, and here we are having a Z domain, जिसमें हम एक यूनिट सर्किल बनाते हैं और उस पर प्लॉट करते हैं. सो आगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ. अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा मुझे आप पॉइंट आउट करेंगे तो हम उसको आसानी से डिस्कस कर लेंगे. सही है? बात समझ में आ रही है? यस सर. गुड. यस सर. अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बहुत ही सिंपल से एक्सप्रेशन है, उनको आपस में रिलेट किया गया है. जब हम रिलेट करते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में. अब जिस तरह यहाँ पर अगर हम एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात करते हैं, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट. अगर मैं यहाँ इसको सर्किल करता हूँ, ये कौन सा ट्रांसफॉर्म है? This is Laplace transform. Very good. This is Laplace transform. Okay. अब अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करते हैं, तो अब देखें दोनों को रिलेट किया गया है.
कि आपके पास हम जब सैम्पलिंग करते तो टी एन टी हो गया, फिर समीशन की साइन आ गई, जेड की जगह हमने इसको ई एस टी कर दिया, एक्स एन बिकम्स एक्स जेड हो गया। जब हम जी ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, जो कि हम इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं अपने सिग्नल एंड सिस्टम में। तो आई होप इन एक्सप्रेशंस में you don't feel any you should not feel any difficulty. If you feel any difficulty then please don't hesitate to ask कि सर ये पॉइंट कैसे हुआ, तो ज़रा मैं इस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज जहाँ तक मैं उम्मीद रखता हूँ, आई होप कि आप सबको आइडिया होगा इन चीज़ों का, क्योंकि हम चीज़ें ये पढ़ चुके हैं सारी। यस, एनी क्वेश्चन? नो सर। इसमें देख लें सारी टर्म्स। जी जी बोलें। S equals to rho plus j omega। सर ये तो जी जी जीरोस एंड पोल्स कोई चीज होती है ना उसके ग्राफ। नहीं इधर इसका क्या लिंक? नहीं एक्चुअली होता ये कि एस जो है ना वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम जो है डिफाइन करते हैं उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट से। ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब आप किस चीज़ को ज़ीरो कह रहे हैं? सर जीरोस एंड पोल्स निकालते थे ना हम ट्रांसफर फंक्शन वगैरह जी के, जी 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 उसके ग्राफ में हमें ये चीज काम आती थी। और जी इसके अलावा बिल्कुल सही ये कह एक्सप्रेशन। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे जीरोस एंड पोल्स भी आ जाएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है सर। ठीक है ना। अभी इस वक्त आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड करो, एक्स जो एस जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। डेफिनेटली इफ आई एम सेइंग इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब ये है कि उसमें रियल एक्सेस भी होगी और इमेजिनरी एक्सेस भी होगी। आप सबको पता है कि रियल एक्सेस जो होती है वो एक्स एक्सेस पे होती है, ये आपके पास रियल होता है, और ये आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब इसको उन्होंने जो है ना इसको इसको उन्होंने रो कर दिया है, रो से इंडिकेट किया हुआ है, और इसको उन्होंने जो है जे यानी ओमेगा से इंडिकेट किया, और इमेजिनरी है तो इस वजह से जे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसके जीरोस एंड पोल्स कैसे प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक पॉइंट, तो अभी अभी पता चल जाएगा। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का हमें पहले से आइडिया, इस वजह से मैं इसको जो है ना जल्दी इसको जो है वो रैप अप करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जी ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन आप सबको पता है कि ये होता है जी ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन, कि हम किसी भी फंक्शन का अगर जी ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो हम इसे जो है ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। इसको हम बायलैटरल कहते हैं। क्यों इसको बायलैटरल कह रहे हैं और इसको हम क्यों यूनिलैटरल कह रहे हैं? सो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी और जीरो से इन्फिनिटी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी रेंज को कवर कर रहा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये सिर्फ एक साइड को कर रहा है जीरो, दिस वी कॉल इट यूनिलेटरल। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा वाला सेलेक्ट करना है? ये डिपेंड करेगा कि गिवन सीक्वेंस जो है उसकी रेंज क्या है। अगर गिवन इफ गिवन सीक्वेंस इज हैज़ अ फाइनाइट ड्यूरेशन एट द पॉजिटिव साइड, देन वी हैव टू मेंशन दैट ड्यूरेशन फ्रॉम जीरो टू समथिंग, जो भी वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर नेगेटिव में तो माइनस से लेके जाएंगे। अगर वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इफ़ इट इज़ इनफाइनाइट सीक्वेंस, देन वी हैव टू, इफ़ इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड यानी अगर पॉजिटिव साइड है तो वी हैव टू मेंशन जीरो टू प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव साइड है जीरो टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी टी एफ टी, ठीक है। समटाइम हम यहाँ पर ई जे ओमेगा लिखते हैं, समटाइम हम यहाँ पर ओमेगा लिखते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द नोटेशन, अदरवाइज कॉन्सेप्ट इज सेम। अच्छा, अब होता है यहाँ पर ये है कि अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन इसको अगर आप कंपेयर करो ना जी ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन से, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ आपके पास जो
जेड की वैल्यू है ना, उससे आप बड़ी आसानी से इसमें से जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपसे पूछूं कि जेड की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर जेड की वैल्यू है ई की पावर जे ओमेगा। है ना, इससे में ये अंदाजा हो रहा है ना, सारा एक्सप्रेशन सेम ही है, बट डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि जब डी टी एफ टी की तरफ जाते हैं तो एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा, उसमें कोई भी जेड डोमेन नहीं है। अब जेड डोमेन का एडवांटेज क्या है, वाई वी आर यूजिंग जी ट्रांसफॉर्म। तो जी ट्रांसफॉर्म यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम उसमें हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी सीक्वेंस का, वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर जैसे हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ अ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का हमें आइडिया हो जाता है कि वो जो फंक्शन है वो कहाँ पर जाके जो है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, या उसकी रेंज क्या है। तो डी टी एफ टी में जो है ना वो एक हम ये चीज़ जो है ना हम फ्रिक्वेंसी को एनालाइज तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है ना वो कहाँ पर जाके फाइनाइट होगा, कहाँ पर जाके वो इनफाइनाइट होगा, दैट कैन बी easily understood by the region of convergence. So therefore Z transform is used to identify the region of convergence by using the unit circle, इस तरह हमने किया था लास्ट सेगमेंट सिस्टम में। तो this is the basic difference between these two, otherwise both are same। सही है। एनी क्वेश्चन? सर ये DTFT बहुत पीरियोडिक और एपीरियोडिक के लिए भी होता है? नो, जब हम DTFT की बात करते हैं तो इट मीन्स कि इट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो whenever we are saying Fourier transform, it is always used for periodic signals, sorry aperiodic signals। अगर हम पीरियोडिक की बात करते हैं तो उसके लिए फिर हम फोरियर सीरीज यूज करते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी जब भी टर्म आएगी तो मीन्स कि इट इज एसोसिएटेड विद द अपीरियोडिक सिग्नल्स। ओके सर। ओके, एनी क्वेश्चन? आगे चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। यस 36 क्लियर है। 43। क्लियर सर। तो अब मुझे क्योंकि जो है ना फीडबैक नहीं मिल रहा तो मैं खुद ही पॉइंट आउट करके पूछता जा रहा हूँ। यस 04। यस सर क्लियर है। ओके, अच्छा अब हम इसको जो है ना जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि बेसिक जो ऑब्जेक्टिव क्या है, जब सब चीज़ें सेम ही हैं जी ट्रांसफॉर्म में और DTFT में, तो हम क्यों यूज़ करते हैं जी ट्रांसफॉर्म। तो मैंने अभी बताया था कि उसमें हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का एक आइडिया पता चल जाता है कि हम उस सिग्नल की या उस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो कहाँ पर जाके इनफाइनाइट होगा, कहाँ पर जाके अनस्टेबल होगा, बाय स्केचिंग द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जी ट्रांसफॉर्म, हाउ यू कैन प्लॉट द जेड डोमेन और यूनिट सर्किल ऑन द जेड डोमेन। ऑब्वियसली जब यूनिट सर्किल की बात आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर इस फैक्टर में ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाती है तो आप यहाँ पर आप देखें कि अगर ये फैक्टर आपके पास इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस अगर आप देखें तो ये जेड प्लेन है, ये इसका दिस इज रियल एक्सेस और ये इमेजिनरी एक्सेस है, और यहाँ पर ये जो सर्किल हमने बनाया है ये इसका डिफ़ॉल्ट सर्किल है। अब ये डिफ़ॉल्ट सर्किल है, इसका जो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू जो है 1 है, ये 1 कैसे आता है, therefore we call it a unit circle।
वाई इट इज इक्वल टू 1? सर रेडियस 1 के बराबर है तो इस वजह से यूनिट सर्किल कह रहे हैं ना। जी जी, लेकिन ये वन कैसे होता है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर ओमेगा इंफिनिटी पे चला जाता है। नहीं, ओमेगा इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो फिर तो सारा सर इन्फिनिटी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड 1 होगी। हाँ, मैग्नीट्यूड 1 कैसे आता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड सर 1 ये कैसे तब आएगा? आता है कि हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन बचती है, अगर उसमें हमारे पास 1 आ जाता है तो हमारी एक्सप्रेशन इंफिनिटी को रीच कर जाती है। ये इसका मतलब इधर ये है ना कि सर 1 पे एक्सप्रेशन जो है हमारी इंफिनिटी पे चली जाएगी। नहीं, मतलब बेसिकली होता ये कि अब आप इसके मैक्सिमम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखिए यहाँ पर जो है ना यूनिट सर्किल कहा गया है, अ सर्किल ऑन जेन प्लेन विद द यूनिटी रेडियस। अब यूनिटी रेडियस जो है वो किस कंडीशन में आएगा, मतलब जिस तरह आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी तब आएगा? सर मतलब जब वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा पूरा, यानी कि ओमेगा जब रेडियस 1 होगा और ओमेगा 0 पे आएगा, ये तो अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है। रेडियस रिपीट कीजिएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये रेडियस 1 हो जाए हाँ, और ओमेगा जो है 0 पे लाई कर। नहीं, अगर अगर ओमेगा जीरो पे चला गया, अगर ओमेगा जीरो पे चला गया तो ये फैक्टर तो ख़त्म हो जाएगा ना। अगर ओमेगा यहाँ पर ज़ीरो आ गया तो ये तो 1 हो जाएगा। नहीं, ई की पावर अगर हम ज़ीरो करेंगे जी तो जी जी। एनीथिंग पावर ज़ीरो, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं वो बस मेरी गलती थी इसमें। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं थी, आप बताएं। आप काफ़ी हद तक आप सही
आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हाँ सॉरी, बीच में दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जी 43 आप क्या कह रहे थे? सर मैं डायरेक्ट जेड को 1 करने के बराबर सोच रहा था, बजाय कि इसके मैग्नीट्यूड को 1 करना। नहीं देखो, मैग्नीट्यूड जो है ना, वो मैग्नीट्यूड यहाँ पर इक्वल टू 1 हो रहा है ना। अब आप देखें ना, जेड की वैल्यू क्या है, आर ई जे ओमेगा है ना। अब आर ई जे ओमेगा इज बेसिकली, अगर मैं इसको एक्सपेंड भी करूंगा तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, हम जब भी उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो 1 ही होगा, चाहे ओमेगा की वैल्यू क्या भी आ जाए। ये तो पता है ना आपको, क्योंकि वो फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं हमेशा 1 ही आता है। ये हमने किया था ना एक्सप्रेशन, आपको याद होगा। यस सर, यस यस सर। सर, यस सर, याद हाँ, आ गया। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ना 1 आ रहा है। अब जिस तरह सीट नंबर 4 कह रहे थे पोल्स एंड जीरो, तो पोल्स एंड जीरो का आपको आइडिया है, व्हाट इज पोल एंड व्हाट इज जीरो? यस, सीट नंबर 4 पोल एंड जीरो की आप बात कर रहे थे ना। यस सर। तो पोल्स क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि पोल्स मतलब यहाँ पर ये जो है ना, ये जो क्रॉस की साइन है ना, इसे हम पोल कहते हैं, दिस इज पोल। और तो ये सर सिस्टम के स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए होता है ना, पोल्स बिल्कुल एंड जीरोस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे जहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच करे वो हैं पोल्स जी। होते हैं, और यस जहाँ पे सर। जीरो को अप्रोच करे वो जीरो। जी, पोल्स बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जहां पर आपका जो एक्सप्रेशन है ना वो इनफाइनाइट हो जाए। यानी वो वैल्यूज होती हैं जहां आपका एक्सप्रेशन इनफाइनाइट हो जाए, और जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जहां पर आपका एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। तो ऑब्वियसली जीरो जो है ना एक फाइनाइट वैल्यू है, जबकि पोल जो है ना वो एक इनफाइनाइट वैल्यू है। तो डेफिनेटली अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास, अब देखो ना, इन दोनों को इंटर रिलेट किया गया है इस डायग्राम में। बेसिकली क्या किया गया है कि अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ ना, तो इस डायग्राम में पोल्स एंड जीरोस को जो है ना, और जो यूनिट सर्किल है ना उसके रेफरेंस से प्लॉट किया गया है। अब ये जो यहाँ पर ये पोल को मेंशन किया गया है, दैट पोल इंडिकेट्स कि आप अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे जाएंगे तो सिस्टम इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। और डेफिनेटली जीरोस का मतलब क्या है कि जहाँ पर अगर आप सिस्टम जो है आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपके पास जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ना, ये दोनों जो यूनिट सर्किल और पोल जीरो मैपिंग को एक साथ जो है ना वो डिस्क्राइब किया गया है एक साथ। अदरवाइज ये ऐसे होते नहीं है एक साथ। इधर हम इसको स्टेबिलिटी को पोल और जीरो से डिफाइन कर रहे होते हैं, या तो फिर हम उसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से डिफाइन कर रहे होते हैं। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें डेफिनेटली वी हैव टू प्लॉट द यूनिट सर्किल, और उस यूनिट सर्किल के बेसिस पे हम कहते हैं कि आपके पास अगर आउटसाइड द सर्किल यूनिट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, इनसाइड ऑफ सर्किल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो डिपेंड करता है कि वो जो रीजन है जहाँ पर शेडेड पोर्शन है जो कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, उस पर्टिकुलर रेंज में आपके पास सिस्टम जो है वो क्या है, स्टेबल है, और आउट ऑफ दैट रेंज सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। So both are representing the stability of the system, but the in Laplace transform हम उसको पोल जीरो के फॉर्म में शो कर रहे होते हैं बिकॉज इट इंडिकेट द सिस्टम स्टेबिलिटी, और यहाँ पर हम इसको जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की फॉर्म में शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों अल्टरनेट वे हैं डिस्क्राइब करने के, तो इस वजह से इन दोनों को एक साथ मैप किया गया है। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि फाइंड द जी ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये क्या मैंने लिखा हुआ है, इसको क्या क्या कहते हैं, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? इम्पल्स। वेरी इम्पल्स गुड। फंक्शन। जी जी, इम्पल्स फंक्शन है, और ये बी जो है पार्ट बी में क्या है, यूनिट स्टेप। यूनिट यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। यूनिट हमने स्टेप। जी हमने इसका जी ट्रांसफॉर्म लिया। अब आपको पता है कि जब जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इम्पल्स फंक्शन को हम क्या सम करेंगे, क्योंकि आपके पास वो पता है वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, और वो पॉइंट यहाँ पर हम जीरो अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा जीरो हो गया और जेड जीरो हो गया, तो ये इक्वल टू 1 आ जाता है।
तो जी ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 1। इसी तरह ये हमने लास्ट क्लास में सिग्नल सिस्टम में हमने इसको सॉल्व किया था, फिर हमने उसमें वो सारे एक्सप्रेशन वगैरह सारे लगाए थे। तो यहाँ पर ये z अपान आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, याद आ रहा है, ये हमने सॉल्व किया था सिग्नल सिस्टम में। यस सर। तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो ये एक्सप्रेशन आया था z अपान z माइनस 1, ठीक है। तो इसको जो है हमने यहाँ पर हाँ, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं। अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में हमारे पास अभी हमने जो डायग्राम डिस्कस की थी, ये जो डायग्राम डिस्कस की थी ये वाली, इसी को ही जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में जो है अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ z फॉर विच योर xz अटेन अ फाइनाइट वैल्यू। इस तरह मैंने बताया था कि जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, ये इंडिकेट कर रहा होता है ROC। अब वो डिपेंड करता है सिस्टम की वैल्यूज़ पे कि वो वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। क्लियर? सर ये डेफिनेशन रिपीट करिएगा। जी जी, डेफिनेशन में ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम बार बार ROC की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं इसका पहले से ही कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। तो मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी भी सिस्टम का अगर आपको ROC मालूम करना है तो बेसिकली उसका मेन पर्पस क्या होता है। उसका पर्पस ये होता है कि आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ z, यानी z की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं वेयर यूर xz गोइंग टू बी फाइनाइट। तो वो रेंज भी हो सकती है, वो स्पेसिफिक वैल्यू भी हो सकती है। तो अगर रेंज है तो उसको हम शेड कर देंगे, उस शेडेड एरिया का मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ z पे आपके पास जो xz की जो वैल्यू है वो क्या है, वो फाइनाइट है या स्टेबल है, आप ये कह सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है ना ROC कहा गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। आपको पता है कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स फाइनाइट वैल्यू। और अगर मैं यही चीज डाइवर्जेंस कहूँ तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोचिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट वैल्यू। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर आप देखें कि एक्जेड की जो एक्जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा जिस पॉइंट पे लेस देन इन्फिनिटी आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। सर तो वो इस जो प्रीवियस z इक्वल्स टू 1 आपने बताया था मैग्नीट्यूड वाला, वो एक बार फिर अगर बता दें तो। जी जी, वो मैं अभी फिर भी मैं देख, यानी यहाँ पर देखें, मैं ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हलाए तो कौन तो वीडियो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस अब सर। आ रही है। पहले जी जी, पहले मसला चल रहा है शायद कोई। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल आता है। मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था। सर नहीं, रीजन कन्वर्जेंस के हिसाब से आप कह रहे थे ना कि z का मैग्नीट्यूड 1। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे आवाज़ समझ में नहीं, रिपीट करो क्या कहना चाह रहे हैं।
सर मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे थे ना उस वक्त के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के हिसाब से जेड का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट सर्कल वगैरह का कुछ बात कर रहे थे आप। जी जी, मैं सर ये उस वक्त कह रहा था। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके पास z इक्वल टू आर ई जे ओमेगा है ना, ठीक है ना। ये आपके पास z की वैल्यू है, या मैं पॉइंट करता हूँ, ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये आपके सर पास आपकी z की आवाज वैल्यू बीच है। में। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल। असल में कनेक्शन का आज इशू हो रहा है, पता नहीं क्यों, मैं खुद परेशान हूँ कि ये क्यों कनेक्शन। अब सही आ रही है आवाज़? सर अब सही आ रही है। हाँ, बीच बीच में जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। मैं ये बस ये समझाना चाह रहा था। और डेफिनेटली इसी वजह से जो है ना, यहाँ पर आपके पास जो सर्किल आ रहा है उसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड आ रहा है 1 आ रहा है। सर फिर तो हमारे पास जेड की वैल्यू आर आ रही है ना, अगर इस तरह से देखें तो जो हमारा रेडियस होगा उसी हिसाब से हमारे पास जेड का मैग्नीट्यूड आएगा। नहीं, असल में देखो ना, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? अगर ये बनाता है तो ये आर आ जाएगा। यस सर। आप सही कह रहे हैं, आर आएगा, लेकिन हम इसको जो इस लेते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट, क्योंकि ये एक डिफॉल्ट वैल्यू है जहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अब ये 1 जो है, ये कोई फिक्स का जो है ना वैल्यू कनेक्शन इशू है है, सर। तो उसका जो आवाज सर्किल आपकी कट बनेगा उस पे उसका जो रेडियस है उस पर डिपेंड करेगा। आ रही है बात समझ में? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है आपकी, लेकिन बीच बीच में बहुत कट रही है आवाज। हाँ, मैं बात समझ में आ रही है कि ये 1 जो है ना, ये फिक्स नहीं है। ये इसकी ये आप ये समझ लो कि ये डिफॉल्ट वैल्यू हमने ले ली आसानी के लिए। अब अगर हम जब भी कोई एग्जांपल करते तो उसमें हमें जेड की उसका जो रेडियस है सर्किल का वो हमें देखना पड़ेगा। जिस तरह कुछ केसेस में इनफाइनाइट आ रहा था रेडियस, कुछ केसेस में जीरो रेडियस आ रहा था, कुछ केसेस में कुछ और वैल्यू आएगी। तो वो डिपेंड करेगा उस एक्सप्रेशन पे, उसके हिसाब से हम सर्किल बनाएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना। जिस तरह अगर मैं इस केस में देखता हूँ, इस केस में अगर मैं देखता हूँ, तो अगर यहाँ पर फाइंड द जी ट्रांसफॉर्म, अगर इस एग्जांपल में देखें कि हमने इसका जी ट्रांसफॉर्म निकाला और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है ना। अगर मैं इस पे गौर करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इसका आर निकालो, मैं कहता हूँ कि इसका आर निकालो, अब आप बताओ कि इसका आर क्या निकलेगा? सर इधर हमारे पास जेड जो है वो जीरो से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो हमारी एक्सप्रेशन है वो इंफिनिटी पे चली जाएगी। नहीं, मैं इस एक्सप्रेशन को तो छोड़ दें, इसको तो मतलब फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है मेरे ख्याल में। इसमें से ज़्यादा यहाँ इस पॉइंट से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वहाँ तो फिर आपको फिर वो देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो अगर यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आर इसका क्या होना चाहिए? अगर ये इसका ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिन है, तो इसका आर क्या होना चाहिए? देखें यहाँ पर आर मेंशन किया गया है, द आर इज इंटायर कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन एक्सेप्ट द ओरिजिन। समझ में आ रही बात? यानी आपको ये देखना है कि एक्स जेड यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर आप जेड की वो कौन सी वैल्यू प्लेस करते हैं जिस पे इसका रिजल्ट फाइनाइट आता है, और कौन सी वैल्यू प्लेस करते हैं जिस पे इसका रिजल्ट इनफाइनाइट आता है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें, तो जेड की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जिस पे इसका रिजल्ट इनफाइनाइट आ जाए, सिवाय एक के। अब वो वैल्यू क्या होगी? जेड इक्वल टू 0। सर जेड इक्वल टू जीरो पे
किस तरीके से इनफाइनाइट है? तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में z इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे, अगर यहाँ पर अगर आप z इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे, ठीक है, इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 3/0 क्या होगा, ठीक है सर, 3/0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसी को ही और आसान करने के लिए हमने फिर ये इस एक्सप्रेशन को इस तरह मॉडिफाई किया है। अब आप खुद ही बताएं, जिस तरह आप कह रहे थे, अब यहाँ पर अगर z की वैल्यू 0 आ गई, जब z की वैल्यू 0 आ गई तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बिल्कुल सर, सही। तो सिवाय z की वैल्यू 0 के ये कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं हो रहा। इवन z की वैल्यू इन्फिनिटी पे भी इनफाइनाइट नहीं हो रहा। हो रहा है z की वैल्यू इन्फिनिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी पे हो रहा है इनफाइनाइट। नो सर, अगर नो सर। 1 देखते हैं तो नहीं हो रहा। z की वैल्यू इन्फिनिटी पे फिर ये 0 हो जाएगा। सर 0 नहीं होगा ना, वो हमारे पास 2 कांस्टेंट है, 2 हो जाएगा। हाँ सॉरी, 2 हो जाएगा, सही कह रहे हैं, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, इन अदर वर्ड्स इनफाइनाइट वैल्यू, सॉरी फाइनाइट वैल्यू आएगी ना। यस सर। ठीक है, तो जो इसका जो अगर मैं कहता हूँ कि इसका आरओसी निकालो, तो इसका आरओसी क्या होगा, इसका आरओसी इंटायर कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0। अब इसको हमने किस तरह बनाया था, आपको याद होगा, आपके पास नोट्स होंगे, आपको याद होगा कि इसको हमने बनाया था, इस तरह बनाया था कि हमने कहा कि अच्छा, अब यानी आरओसी जो है, इसका जो आरओसी है वो इंटायर जेड प्लेन है। अब इंटायर जेड प्लेन का मतलब ये कि हमने पूरे पोर्शन को इस तरह शेडेड कर दिया था। ठीक है ना, पूरे पोर्शन को हमने शेडेड कर दिया था और यहाँ पर हमने इसको एक डॉट दे दिया था, ये डॉट, और ये डॉट क्या इंडिकेट कर रहा था, सर यहाँ पे इन्फिनिटी होगा सिस्टम। याद नहीं आ रहा मतलब आप, ये डॉट ये इंडिकेट कर रहा था कि एक ऐसा सर्किल, अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा सर्किल बनाओ जिसका जो रेडियस है वो 0 हो, तो क्या बनेगा, डॉट सर बनेगा। डॉट ही बनेगा। डॉट ही बनेगा। अब उस सर्किल के आउटसाइड का जो पोर्शन है वो सारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, क्योंकि आपको सिर्फ एक पॉइंट ऐसी है जिसपे वो जो है ना वो स्टेबल नहीं है या उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है, उसके अलावा सारी वैल्यूज पे ये फाइनाइट आ रहा है। तो इस वजह से हमने ये जो सर्किल है, ये सर्किल हमने डॉट की फॉर्म में जो है ना प्लॉट किया है, और ये सारा शेडेड पोर्शन हमने मेंशन कर दिया है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा, इसका आरओसी क्या बनेगा, इम्पल्स फंक्शन का आरओसी क्या बनेगा, इंटायर जेड प्लेन बनेगा, क्योंकि इसमें आपके पास कहाँ पर इसको फाइनाइट लिखा, इसको इनफाइनाइट कैसे करोगे आप, इसकी तो वैल्यू 1 आ रही है, तो इंटायर जेड प्लेन बनेगा। इसका आरओसी क्या बनेगा, इसका आरओसी बनेगा इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0। ये वही जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आरओसी कौन से, इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यों जेड इक्वल टू इन्फिनिटी है, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू क्या आ रही है, इसकी जेड आ रही है। अब जेड की वैल्यू आप कुछ भी कर लें सिवाय इन्फिनिटी के, ये इन्फिनिटी होगा, अदरवाइज ये जेड ही रहेगा। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, यस 04 कैसे प्लॉट करेंगे इसको, सर सब शेडेड होगा और सर्कल के इनसाइड शेडेड होगा।
सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम इन्फिनिटी शो कर देंगे। तो उस सर्किल के रेडियस की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी सर। अच्छा, तो ऐसा सर्किल बन सकता है जिसका रेडियस इन्फिनिटी हो? नहीं बन सकता सर, तो पूरा पोर्शन तो शेडेड होगा। जी जी, पूरे का पूरा पोर्शन जो है ना हम इस तरह शेडेड कर दें। अच्छा, आगे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, इसमें थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपके पास आपने इसका जो है जी ट्रांसफॉर्म निकाला, यूनिट स्टेप फंक्शन का जी ट्रांसफॉर्म निकाला, और ये फैक्टर आ गया z अपान z माइनस ए। z अपान z माइनस ए आ रहा है, ठीक है। अब z अपान z माइनस ए आ रहा है। अब आपके पास सर ए के अलावा हर वैल्यू पे वो आरओसी होगा। जी, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये आपका आरओसी है, आरओसी है। अब आप देखें ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच में तो रेडियस ए है जो ओरिजिन पे है, यहाँ पे हमारे नहीं, पास आरसी नहीं होगा। वो जी जी जी, वो तो हमें एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है ना। जिस तरह यस सर। अभी अब मैं कहूँ कि इसका पोल का बनेगा, आप कहेंगे पोल सर इसका z इक्वल टू ए पे होगा। तो इस वजह से पोल बनाया हुआ है, देखें यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, ये जीरोस है ना, इसे हम जीरोस कहेंगे। ये पोल है, ये पोल है, ये बेसिकली पोल है। तो इसको कभी भी एक साथ नहीं बनाते, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया, वरना हम या तो जेड डोमेन पूरा बनाते हैं, आरओसी मेंशन करते हैं, या तो फिर पोल जीरो की अलग मैपिंग करते हैं। तो ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है कि यहाँ पर पोल इसका यहाँ बनेगा और जीरो इसका यहाँ बनेगा। जी, ये डायग्राम क्लियर है? यस सर। यस सर। सीट नंबर 4 क्लियर? यस सर। सीट नंबर 1? अच्छा, मैं बाकी स्टूडेंट से तो पूछूं ना, ये मतलब 7043 और 04 ही मुझे बता रहे हैं, बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं? क्लास में ही है। नहीं, वो तो मुझे पता है, अटेंडेंस के वक्त सब क्लास में आ जाते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये कि नहीं सर, आज पहली क्लास लिए, नेट का इशू आ रहा था मेरा। अच्छा, यस 97। सर ये रिपीट कर देंगे, डायग्राम रिपीट कर क्या रिपीट करूं, बताओ? जी जी जी, डायग्राम में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह यहाँ पर अगर एक ही जगह 1 होता तो हम इसको सिंपली यूनिट सर्किल पे प्लॉट कर देते। अब क्योंकि z की जो है वैल्यू जो है वो यानी यहाँ पर a मेंशन किया गया कि z अपान z माइनस a है, तो आपको पता है कि ये अगर मैं कहूँ कि ये एक्सप्रेशन जो है इन्फिनिटी कब होगा, मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि ये वाला एक्सप्रेशन इन्फिनिटी कब होगा? जब z a के बराबर आ जाएगा। जब z a के बराबर आ जाएगा तो ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके अलावा कोई जब वैल्यू? 1/0 हो जाए। हाँ, 27 क्या कह रहे हैं? जी सर, वही रिपीट कर रहे थे जो अजीज कर रहे थे, हाँ, जब नीचे मैं वाले ये दोनों बराबर हो जाए यानी जी 0 हो जाएंगे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब z की वैल्यू z इक्वल टू a होगा तो ये जो है ना इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना आप कोई भी वैल्यू प्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में आ जाएगा, मतलब इसकी सारी वैल्यूज फाइनाइट आएंगी।
ठीक है। और सेंटर पे कैसे होगा मतलब? सेंटर पे इन्फिनिटी पे भी सर इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। सेंटर की क्या बात कर रहे हैं आप, बताइएगा। सही, आपने सेंटर पे स्मॉल सर्कल बनाया ना, जी जी, इसका क्या सेंटर पे, हाँ ये बेसिकली जीरोज है ना। मैं अगर आपसे पूछूं कि पोल जीरो, अगर इसके प्लॉट, इसके कौन से पोल हैं, कौन से जीरोज हैं, तो इसका पोल कहाँ बनेगा? पोल बनेगा z इक्वल टू ए पे, और जीरो कहाँ बनेगा? जीरो सेंटर पे ही, सही है। जीरो z इक्वल टू जीरो पे बनेगा। ये जीरो है ना, ये जीरो है। तो हमें जब हम आरओसी बनाते, प्लॉट करते हैं ना, तो वी डोंट हैव टू प्लॉट पोल्स इन जीरो। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है कि ये दोनों की इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ जाए। कि अगर आप पोल जीरो मैपिंग का आपको आइडिया है, तो पोल जीरो मैपिंग एक्चुअली इस तरह हो रही होती है। पोल का मतलब क्या होता है? जहां पर सिस्टम की वैल्यू जो है ना वो इनफाइनाइट हो जाए। अब आप खुद ही देखें कि z इक्वल टू ए पे सिस्टम की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। इसके अलावा जो है ना, कहीं पर भी ये इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, और इसकी वैल्यू फाइनाइट ही आएगी। क्लियर? जी सर। यस 18 समझ में आ रही है बात? थर्टी नाइन। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो है ना एक ओवरऑल जो है ना, एक मैंने टेबल बुक से उठाई थी, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको सारा जो है ना, अभी जो हमने आरओसी का डिस्कशन किया है ना, तो वो सारा उसका जो है ना प्लॉटिंग मेंशन की गई है। जिस तरह मैंने पहले केस में डिस्कस किया था कि उस केस में आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस थी, तो उसका जो है ना हमने ये डिसाइड किया था कि उसका जो आरओसी होगा इंटायर जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखें यहाँ पर, अभी हमने ये डायग्राम डिस्कस किए थोड़ी देर पहले। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो आपको पता है कि इंटायर जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। ऑब्वियसली जेड इक्वल टू इन्फिनिटी का सर्कल नहीं बनेगा, तो ये जेटिस बनेगा। अब अगर बायलेटरल सीक्वेंस है, मींस के सीक्वेंस एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आल्सो एंड द राइट हैंड साइड, तो आपके पास इन दोनों डायग्राम को अगर आप मर्ज कर दो, अगर इन दोनों डायग्राम को मर्ज कर दो, तो आपके पास ऑब्वियसली यही डायग्राम बनेगी। तो ये डायग्राम आ गई। अब यहाँ पर जो है ना, ये सारे का सारा जो है हम डिस्कस कर रहे हैं इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए। सॉरी, आई शुड से फाइनाइट ड्यूरेशन, ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए। तो अब अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन में है, तो डेफिनेटली आपको, जिस तरह जब हमने यूनिट स्टेप का आपने देखा था, तो यूनिट स्टेप में अगर ए आ रहा है या कोई भी वैल्यू आ रही है, तो वो सर्किल को छोड़ के सारे का सारा आपके पास क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ कन्वर्ज हो जाएगा। और इसी का अगर वाइस वर्सा लें, तो ये आपके पास इंटरनली आ जाएगा, और अगर सर्टेन रेंज है तो बिटवीन टू रेंजेस आ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ये जो टेबल है ना, ये बड़ी टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब उन्हीं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट्स में मेंशन कर दिया है, तो आप इसको स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। जिस तरह में फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि द आर ओ सी, द यहाँ अगर इसकी बात करते हैं, अ रिंग और डिस्क इन द जेड प्लेन सेंटर एट द ओरिजिन इज नोन एज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कन्वर्ज एब्सोल्युटली इफ एंड ओनली इफ द आर ओ सी इंक्लूड द यूनिट सर्किल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द आर ओ सी कैन नॉट इंक्लूड एनी पोल्स। आर ओ सी में कोई पोल नहीं होगा। इसका क्या मतलब है?
सर पोल हमारे पास वो वैल्यू होती है ना कि जो सिस्टम को इनफाइनाइट कर दे, तो जाहिर सी बात है आरओसी पे के अंदर वेरी पोल गुड, नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया 04 ने कि आरओसी में कोई भी पोल नहीं होगा। डेफिनेटली अगर पोल होगा तो इसका मतलब है सिस्टम इनफाइनाइट हो रहा है। बाकी तो चीज़ें आसान है कि फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस में अगर आरओसी इंटायर जेड प्लेन है एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, डिपेंड करता है कि अगर z इक्वल टू 0 किस केस में होगा, अगर वो पॉजिटिव साइड पे होगा, और z इक्वल टू इन्फिनिटी तब होगा जब वो नेगेटिव साइड पे होगा। फिर इसको सेपरेट किया गया है, राइट हैंड साइड का मतलब पॉजिटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब नेगेटिव साइड, और टू साइड। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बस ये पॉइंट्स में मेंशन किया गया है इसको। ठीक है, एनी सर क्वेश्चन? बाकी नेक्स्ट क्लास में कर दें सर। हाँ हाँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ये सर मैं आज फास्ट में इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ का एडवांटेज उठा रहा हूँ कि सिग्नल सिस्टम में मैंने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ाया है ना, और आपका जो जी ट्रांसफॉर्म का कुछ पोर्शन इसमें भी है, तो इस वजह से मैं इसके जो आगे वाले जो जी ट्रांसफॉर्म है और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना उसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, इस वजह से मैं इसको फास्ट लेके चल रहा हूँ। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो पहला काम तो ये करे कि जो सिग्नल सिस्टम में मैंने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ाया है उसको ज़रा देख ले। अगर फिर भी डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो इस पे जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो उसमें आप पूछ सकते हैं। और जो है ना, आई वांट कि एवरी स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन द क्लास, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये जो 4-5 स्टूडेंट हैं वो तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो मुझे ये फील हो रहा है कि शायद चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या थोड़ा सा ऊपर से गुजर रही हैं, मतलब। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट अगर इन्वॉल्व होंगे तो क्लास मतलब एक एनवायरनमेंट बनेगा। अदरवाइज ऐसे फील हो रहा है कि वन वे ट्रैफिक चल रही है। ठीक है ना? तो आई अप्रिशिएट कि जो स्टूडेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट सबको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर मैं इन्वॉल्व करूँगा, पॉइंट आउट करूँगा और उनसे मतलब फिर डिस्कशन करूँगा। ठीक है? ठीक है सर सर। एक क्वेश्चन है सर। अब देखें कि सबकी आवाज़ आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, सही है। तो ये ड्यूरिंग सर क्लास भी आनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन है फ्रॉम सेकंड बोलो। लास्ट लेक्चर आपकी। जी 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 जी, बोलो। जो 20 मई को हुआ था उसमें आप एक स्लाइड है उसमें मेंशन है कि डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये सही है सर? डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। नहीं, वो मे बी कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई। एक्चुअली डिस्क्रीट अपीरियोडिक होगा। और अगर सर डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक सिग्नल हो इसके लिए हम फिर सीरीज यूज़ करेंगे या कोई और होगा इसका? हाँ नहीं, उसके लिए फोरियर सीरीज यूज होती है। ओके सर। फोरियर ट्रांसफॉर्म का मेन पर्पज ही ये होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का पर्पज ये होता है कि अपीरियोडिक सिग्नल को हमें एनालाइज करना होता है। अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो फिर तो फोरियर सीरीज होती है। ओके सर, मे बी थैंक यू। मैं फिर भी चेक कर लूंगा, मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो। यस सर, वहाँ पे लिखा हुआ है टाइपिंग मिस्टेक होगी सर। गुड, आपने अच्छा है कि आपने पॉइंट आउट किया। मैं देख लेता हूँ उसको। क्लियर? एनीथिंग एल्स? क्लियर सर। गुड। सीट नंबर, अच्छा अब मैं जो है ना अटेंडेंस लेता हूँ।